Our chapter is chapter 5, The Three Whalers. Before starting the chapter, let's warm up. First, we discuss something. When do we cry? We hurt ourselves, we are angry, something is not the way we want it to be, we are sad, we lose something. सवाल यहाँ है कि हम रोते कब हैं, किन कारणों से रोते हैं। ये आप अपने दोस्तों से भी बातचीत करके कर सकते हैं या खुद भी सोच सकते हैं कि हम रोते कब और क्यों हैं। Actually here this is a story about how people behave seeing others reacting on an issue. They don't try to ask and solve problems, rather they get involved in it. Moreover, this story also emphasizes the importance of studies. A person who does not take their lesson or studies properly in childhood has to pay back till his old age. Let's read and understand what problem occurred in the lives of few people in the story who did not pay attention on what is going on around. Actually, ये स्टोरी है 3 रोने वाले व्यक्तियों की। क्राई, अभी सवाल ये भी पूछा गया कि आप रोते कब हो, रोना क्यों आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग किसी सिचुएशन को देखकर, किसी व्यक्ति को रोता हुआ देखकर उसके साथ रोने लगते हैं। वो सिचुएशन क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसे कैसे चुप कराया जाए, ये चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए उनके साथ हो लेते हैं। ऐसा ही स्टोरी में भी हुआ है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। One day old Mrs. Chang got a letter. It was from her son Chen, who lived in a town far away. She could not read, so she waited in front of her house for someone to come by and read out the letter to her. After some time, Warrior Wen came by, swinging his beautifully carved staff. Old Mrs. Chang stopped him and said, "Oh, brave warrior, could you do me a favor? Please read out this letter from my son." एक दिन की बात है, मिसेस चैंग जो एक बूढ़ी औरत थी, उनके पास एक चिट्ठी आया। वो उनके बेटे चेन की तरफ से आया था, जो गांव से दूर एक शहर में रहा करता था। मिसेस चैंग को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो अपने घर के सामने इंतज़ार कर रही थी कि कोई आए और उस चिट्ठी को पढ़कर उन्हें उनके बेटे के बारे में खबर बताए। कुछ देर बाद उनके घर के सामने से वॉरियर वेन आया, जो अपने हाथ में एक बहुत ही सुंदर सा लॉन्ग स्टिक, जिसे स्टैफ कहा जाता है, उसे लेते हुए घुमाते हुए वो आया। ओल्ड मिसेस चैंग ने उन्हें रोककर कहा कि ओ ब्रेव वॉरियर, क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? क्या मेरे बेटे की इस चिट्ठी को पढ़कर मुझे सुनाओगे? Warrior Wen agreed and took the letter from the old lady. Mrs. Chang sat down in eager anticipation of news from her dear son. But one look at the letter and Warrior Wen began to wail. "Wah! What is it, Warrior Wen? Tell me, is something wrong with my son?" asked old Mrs. Chang worriedly. Warrior Wen only looked at her and wailed louder than before. Poor Mrs. Chang was sure that something bad had happened to her son, and she too began wailing. The tears rolled down the cheeks of the brave warrior and the old lady. A little later, Peddler Peng came by. When he saw the old lady and the warrior wailing together, he sat down with them and began crying too. Boo! The 3 of them wailing made a loud noise. Hearing the loud cries, Master Ming, whose school was around the corner, rushed out. Several curious children followed suit. Some giggling, some chattering, some whispering, all of them were delighted that their class had been interrupted. Master Ming saw 3 whalers sobbing their hearts out and went up to them worriedly. What could be the matter, he wondered. Warrior Wing राजी हुआ कि लाइए, मैं वो लेटर पढ़ देता हूँ। मिसेस चैंग वहाँ बैठ गई, बड़े इंतज़ार में कि क्या न्यूज़ आया होगा उनके बेटे के बारे में।
लेकिन वॉरियर वेन जैसे ही उस लेटर को खोल के देखा और साथ ही साथ तुरंत रोने लगा वाह करके। वो ओल्ड लेडी उससे पूछ बैठी, क्या हुआ वॉरियर वॉरियर वेन? कुछ गलत है कि हुआ है क्या मेरे बेटे के बारे में? इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है क्या? वो बड़ी चिंतित हुई और साथ ही साथ वो ओल्ड लेडी उस वॉरियर वेन के साथ बैठकर रोने लगी। अब दोनों का रोना एक अच्छा खासा लाउड नॉइज़ क्रिएट कर दिया। पुअर मिसेस चैंग अब श्योर हो चुकी थी कि ज़रूर उनके बेटे के साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ है, इसीलिए वो भी रोना शुरू कर दी। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे और वॉरियर भी उनके साथ रो रहा था। थोड़ी देर बाद पेडलिंग पैंग नाम का एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने जब देखा कि ये ओल्ड लेडी और वॉरियर वेलिंग वहाँ दोनों बैठ के रो रहे हैं, वो भी उसके साथ आकर रोना शुरू कर दिया, बूहू। अब 3 जन मिलकर जब रोना शुरू किया तो सचमुच का एक बहुत ही नॉइजी माहौल बन गया। इन तीनों का आवाज़ जब लाउड हो गया, बहुत तेज़ हो गया, मास्टर मिंग जो थोड़ी ही दूर पे स्कूल चला रहे थे दौड़ते हुए आए कि क्या बात है, ऐसा क्या हो गया जो इतनी ज़ोर की रोने की आवाज़ आ रही है। मास्टर के स्कूल से निकलते ही सारे बच्चे भी उनके पीछे हो लिए। उनमें से कुछ हंस रहे थे, कुछ गप कर रहे थे, कुछ खुसफुसा रहे थे, लेकिन वे सारे खुश थे क्योंकि उनका क्लास डिसरप्ट हो चुका था। अब उनका क्लास नहीं होने वाला था, पढ़ाई नहीं होने वाली थी। मास्टर मिंग आकर उन तीनों वेलर्स को देखे कि वो लोग बैठकर खूब रो रहे हैं, इतना रोना जैसे उनका दिल बाहर की ओर निकला जा रहा है। वे भी बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने सोचा कि पता नहीं क्या ऐसी बात है कि ये सारे मिलकर ऐसे ही रो रहे हैं। That is for today, student. I have given you the worksheet in the link 2 that read these text and find all the difficult words and find out the meaning of it from the dictionary. You can find some of the word meaning also here and go through it. That's all for today. Tomorrow I will complete the story. That's all for today. Bye.